Coupling is nothing, it is joining the two shafts. Either the shafts may be parallel or inclined. So there are three types of misalignment basically between the shafts. So I am opening the slide of the misalignment first. So how many types of misalignment will be there? So I am showing you the misalignment. Yes. So this is the first shaft. This is the second shaft. Delta is the gap between the axis of the two shafts. So this type of misalignment is literal misalignment. Okay. Similarly, this is the first shaft. This is the second shaft. There is a gap of between them. The axes are collinear. This delta is the axial misalignment. One angular misalignment. This is the axis of first shaft. This is the axis of the second shaft. Both are at an angle of delta. So delta is the angle between the axes of the shaft. So that is known as the angular misalignment. So three types of the misalignments are there. So if misalignments are present between the shaft, then rigid coupling is not used, because rigid coupling does not tolerate the misalignments. Okay? Rigid coupling does not tolerate the misalignment. If misalignment is there, then we have to go for the flexible coupling, and it is also known as bush coupling. These are the flexible elements, and these couplings can tolerate up to 0.5 mm of literal. So delta equal to 0.5 mm is allowed in the case of flexible couplings, and angular misalignment is 1.5 degree. So delta equal to 1.5 degree is allowed in case of flexible coupling. But in case of rigid coupling, misalignment is not allowed. So first, in the today's class, we are going to solve a full numerical in which we will design the different parts of the coupling, different components of the coupling. So what are the different components of the coupling? Can anybody tell? Components of the coupling are, one is the shaft, and there are two shafts, one is the input shaft and one is the output shaft. And second component is flange is used over there, and bolts are also used, keys also used. So these are the components of the coupling. So first we will understand how to design these four components. So I am opening the slide of design procedure. So this is the design procedure for the rigid coupling. First you have to calculate the shaft diameter. Design of the shaft already we have studied. So design of the shaft can be is very simple. The shear stress in the shaft is given by 16 mt divided by pi d cube. Here tau is the shear stress produced in the shaft. Mt is the torque. So by this formula you can determine the diameter of the shaft. So first step is over. Very simple. The second step is dimensions of the flange. Dimensions of the flange. So dimensions of the flange are calculated by empirical relations. There are empirical relations. There are formulas that are given in data book. So we will see what are the empirical relations. So after calculating the empirical relations, we have all the dimensions. We are having hub diameter, we are having shaft diameter from step 1, and we are having torque also. The polar moment of inertia of the hub can be calculated by J equal to pi dh4 minus d4 by 32. It is a hollow shaft. Basically, the hub is a hollow shaft. Hub is a hollow shaft. So the outer diameter is dh, the inner diameter is d. So with these two diameters, you can calculate the polar moment of inertia pi dh4 minus d4 by 32. Okay, dh you are having by the empirical relation, d you are having by step 1. So j is not up, j is available. Okay, r is calculated by dh by 2. So now r is available, j is available. Then you can check the shear stress produced in the hub. So tau is nothing, it is the shear stress in the hub. Shear stress in the hub. So after calculating the hub dimensions empirically, you have to check the shear stress produced in the hub. So this is a checking procedure. We are just checking that the shear stress produced in the hub material is within permissible limits for the safe design of the hub. So there are two checks involved. One is the shear stress in the hub,
And second one is the shear stress in the junction of the hub. है ना? Shear stress in the hub and shear stress in the junction of the hub. Two checks are required. So let's see by the figure what is the junction and what is the simple. So I am opening the figure of the rigid coupling. This is the rigid coupling, है ना? So this is the shaft, this is the hub, है ना? Hub diameter is dh. So dh can be found by 1.5 d. So this part is hub, and it is basically just working as a hollow shaft having outer diameter dh and inner diameter d. And this portion is critical portion because it is the junction of the flange and the hub. Now this is the hub, this is the flange, so it is the junction part. So this junction part is very critical from failure point of view. So we have to calculate the stress in this junction part. So for this junction part, it is working as a cylinder. So what is the curved surface area of cylinder? Anyone? What is the curved surface area of cylinder, Sandeep? Suppose there is a cylinder. What is the curved surface area? Curved surface area of the cylinder is given by 2 pi rh. Everybody knows. You can also write it as pi dh. Here h is replaced by t. T is the thickness of the flange. So the curved surface area is given by pi dt. Okay. So this is the curved surface area pi dt. When this area multiplied by shear stress, so it will give you the force. So pi dt multiplied by shear stress, it will give you the force. When force multiplied by the radius, dh by 2, then it will give you the torque. So for the torque, you are having formula pi d. It is also dh, curved surface area pi dht. So it is pi dh square 1 by 2 t tau. So from this formula, you can determine the shear stress, or you can check the shear stress produced at the junction of the hub. So there are two checks involved: shear stress in the hub and shear stress at the junction of the hub. So I'm just coming to numerical again. So that formula is written over here. This formula that we have derived. So from here you can check the shear stress. So this is the shear stress in the hub, and this is the shear stress at the junction of the hub. So step 2 is over. Now coming to step 3, diameter of the bolts. Okay, bolts are under shear stress and bolts are under compressive stress. So by taking the permissible value for the shear stress in the bolt, we can determine the diameter d1, and after determining the diameter d1, we can check the compressive stress in the bolt. So there are two steps involved. First is to calculate the diameter of the diameter d1 of the bolt, and after determining the diameter d1, check the compressive stress. So this is the check part. Okay. Now what is the shear area of the bolt? It is the cross sectional area pi by 4 d1 square. It is the shear area of the bolt. And what is the compressive area of the bolt? Compressive area of the bolt is given by d1 into t. This is the compressive area for one bolt. If I multiply this area by n, then it is the compressive area of n number of bolts. Okay. Similarly, if I multiply the shear area by n, then it is the shear area of the n number of the bolts. Now the last step is dimensions of the key. Key design we have already studied. So length of the key is kept equal to the length of the hub. We can determine the shear stress in the key, compressive stress in the key, twice mt by dBl. This formula already we are aware, 4 mt by dHl. So these two stresses should be within permissible limits for the safe design. So design is over. Only 4 steps are involved. I am just repeating. First, calculate the shaft diameter. Then calculate the dimension of the flange by the empirical relation. Check the shear stress in the hub. Check the shear stress at the junction of the hub. Then determine the diameter of the bolt. Check the compressive stress in the bolt. Then determine the length of the key and check the shear stress and compressive stress in the key.
दिस इज द होल प्रोसीजर फॉर द डिजाइन ऑफ द रिजिड फ्लैंज कपलिंग। ठीक है, तो अब इसको जरा एक न्यूमेरिकल से देख लेते हैं। It is required to design a rigid type of flange coupling to connect two shafts. The input shaft transmits 37.5 kilowatt power at 180 rpm. ठीक है, तो आप यहां से टॉर्क निकाल दीजिए। टॉर्क इज गिवन बाय 60 10 to the power 6 into kilowatt. Kilowatt is 37.5 divided by 2 pi n, so n is 180. Please solve it. तुषार गुप्ता क्लास में है? सारांश प्रधान, संदीप राजपूत, शुभम, B47, सभी लोग कैलकुलेटर लेके बैठिए। हाँ, एम आई ऑडिबल? हाँ बोलिए। यस सर। तो जरा कैलकुलेट करिए इसको। यू आर हैविंग कैलकुलेटर? 60 10 to the power 6 into 37.5 divided by 2 pi 180. So what is the answer coming for the torque? 19. हाँ बोलिए। 1989. हाँ, it is coming 1989. हाँ बोलिए, डिजिट्स बोल दीजिए। 987 ऐसे बोल दीजिए जो भी डिजिट्स आई हैं। 1989. एक सेकेंड, 1989 436.78. 236.78 है ना? Yes sir. 236.78. यूनिट इज न्यूटन मिलीमीटर। वेरी गुड। सो टॉर्क इज अवेलेबल है ना? Sir 436 है। 436. Okay. Now the service factor for the application is 1.5. So service factor means this torque has to be multiplied by 1.5. So final torque is given by 1.5 into the previous torque. है ना? This is the previous torque. Then MT is the final torque. So I am writing it MTF. है ना? Final torque is given by 1.5 into MT. उसे multiply कर दीजिए 1.5 का, कितना आ रहा है? जब भी क्वेश्चंस में आपको ये सर्विस फैक्टर गिवन हो, तो सर्विस फैक्टर के केस में आपको 1.5 से मल्टीप्लाई करना है ना? जनरली हम इस सर्विस फैक्टर को 1 मान लेते हैं, है ना? बट इफ इट इज अवेलेबल देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट. सो व्हाट इज द आंसर कमिंग फॉर द टॉर्क? 298 4155. ओके, 298 4155 न्यूटन मिलीमीटर. दिस इज द फाइनल टॉर्क. ओके, जैसे ही हमें टॉर्क मिल गया तो सबसे पहला स्टेप क्या है कपलिंग डिजाइन में? सबसे पहला स्टेप है शाफ्ट का डायमीटर फाइंड करिए. तो शाफ्ट डायमीटर कैन बी फाउंड बाय टॉ इक्वल टू 16 mt by pi d cube. D is the diameter of the shaft. Okay, so by this formula we will calculate the shaft diameter. तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. सर्विस फैक्टर तक हो गया. द डिजाइन टॉर्क इज 1.5 टाइम्स ऑफ द रेटेड टॉर्क. ये तो हमने मल्टीप्लाई कर ही दिया है फैक्टर. सेलेक्ट सुटेबल मटेरियल्स फॉर द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कपलिंग, है ना? तो वेरियस पार्ट ऑफ द कपलिंग क्या क्या है? शाफ्ट है, तो शाफ्ट के लिए हमको एक मटेरियल फाइनल करना है ना? क्वेश्चन में दिया नहीं है. वी हैव टू डिसाइड द मटेरियल फॉर द शाफ्ट. सो दैट मटेरियल कैन बी, वी कैन चूज, लेट द मटेरियल इज, है ना? सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल करेंगे. शाफ्ट के लिए भी करेंगे, फ्लैंज के लिए भी करेंगे, बोल्ट के लिए भी मटेरियल और की के लिए भी मटेरियल हम डिसाइड करेंगे. ठीक है, तो मटेरियल डिसाइड पर एक मैंने स्लाइड बना रखी है, तो जरा मटेरियल डिसाइड वाली स्लाइड पढ़ लेते हैं. तो सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल. शाफ्ट्स आर सब्जेक्टेड टू टॉर्जनल शियर स्ट्रेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ प्लेन कार्बन स्टील 40 C8 SYT 380. So this is the material that we have chosen for the shaft. आप कोई दूसरा मटेरियल भी चूज कर सकते हैं, है ना? शाफ्ट्स आर जनरली मेड ऑफ डक्टाइल मटेरियल. तो अभी हमने 40 C8 जो है वो हमने शाफ्ट के लिए चूज कर लिया है.
जिसका SYT 380 है, ठीक है, और उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी हमने डिसाइड कर लिया है 2.5। तो 380 और 2.5, तो हम परमिसिबल टॉ कैसे निकाल सकते हैं? 380 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 2.5, ये हमारा परमिसिबल वैल्यू हो जाएगी टॉ की। सॉल्व करिए कितना आ रहा है। शाफ्ट का मटेरियल हमने डिसाइड कर लिया 40 CA, तो टॉ की वैल्यू कितनी आ रही है सॉल्व करके? 380 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 2.5, हाउ मच इट इज कमिंग? 80, 76. It is coming 76. Okay, so 76 megapascal, it is the permissible shear stress for the shaft. ठीक है, चलिए शाफ्ट का मटेरियल डिसाइड हो गया। अब आते हैं की और बोल्ट पर। की और बोल्ट पे कौन से स्ट्रेस आते हैं जरा बताओ? शाफ्ट पे तो shear स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है, और की के ऊपर कौन कौन से स्ट्रेस आ रहे हैं? की पे दो तरह के स्ट्रेस आते हैं, एक आता है shear स्ट्रेस और एक आता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, बोल्ट पे कौन कौन से स्ट्रेस आते हैं? बोल्ट पे भी दो सेम आते हैं, एक shear आता है, एक कंप्रेसिव आता है, ठीक है। तो कीज एंड बोल्ट्स आर सब्जेक्टेड टू shear एंड कंप्रेसिव। कपलिंग के केस में की और बोल्ट पर सेम टाइप ऑफ स्ट्रेस आते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, प्लेन कार्बन स्टील 30 C8 है ना, SYT 480 सेलेक्टेड फॉर द कीज एंड द बोल्ट्स। तो की और बोल्ट के लिए हमने एक ही मटेरियल डिसाइड कर लिया है, ठीक है, एंड इट इज अज्यूम्ड दैट द कंप्रेसिव यील्ड स्ट्रेंथ इज 150% ऑफ द टेंसाइल यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम परमिसिबल वैल्यू कैसे निकालेंगे की और बोल्ट के लिए? परमिसिबल वैल्यू विल बी गिवन बाय SYT मतलब 400 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने कितना डिसाइड किया है? 2.5। की और बोल्ट के लिए भी हमने 2.5 किया है। तो जरा इसमें टॉ की वैल्यू बता दीजिए कितनी आ रही है, सॉल्व कर दीजिए। 400 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 2.5, 80। तो 80 मेगापास्कल हमारी की के लिए लिमिट है। दिस इज द परमिसिबल वैल्यू फॉर की। और जो पहले वाला टाउ है ये किसके लिए है? दिस इज फॉर शाफ्ट। अब कंप्रेसिव स्ट्रेस की लिमिट भी निकाल लेते हैं। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या है? 1.5 टाइम्स है ना, 1.5 टाइम्स है। तो 400 का पहले 1.5 टाइम्स करिए। तो 400 का 1.5 टाइम्स मतलब 1.5 इंटू 400, ठीक है, और डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 2.5। सॉल्व कर दीजिए कितना आ रहा है? 240, ठीक है। तो देखो कपलिंग की डिजाइन में कभी क्वेश्चन में मटेरियल ना दिए हों एग्जाम में, देन यू कैन अज्यूम योर ओन मटेरियल, ठीक है। जैसे यहाँ हमने 40 C8 ले लिया शाफ्ट के लिए, 30 C8 ले लिया बोल्ट और की के लिए। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5, 3, 1.5 जो भी आपको लेना है आप अपना अज्यूम करिए। जनरली 2 से 3 के बीच में अज्यूम कर लेना चाहिए शाफ्ट की और इनके लिए। फ्लैंज के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा अज्यूम करना चाहिए, बिकॉज फ्लैंज आर मेड ऑफ ब्रिटल मटेरियल, है ना। फ्लैंज की जो शेप होती है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है, और कॉम्प्लिकेटेड शेप के लिए सबसे अच्छी मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है वो कास्टिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो फ्लैंज आर जनरली मेड ऑफ कास्ट आयरन। तो फ्लैंज के लिए अब हम थर्ड पॉइंट पर फ्लैंज के लिए मटेरियल डिसाइड कर रहे हैं। वी आर डिसाइडिंग FG 200, ठीक है, SUT, है ना। दे हैव कॉम्प्लेक्स शेप एंड इजीएस्ट मेथड टू मेक द फ्लैंज इज कास्टिंग। तो ग्रे कास्ट आयरन 200 हमने डिसाइड कर लिया है, एंड इट इज। अब फ्लैंज पे कौन कौन से स्ट्रेस आते हैं बताओ? फ्लैंज पे हमने दो स्ट्रेस चेक किए थे। एक तो हब में किया था वो भी शियर स्ट्रेस था, और एक जंक्शन पे किया था वो भी शियर स्ट्रेस था, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस ही आते हैं फ्लैंज के ऊपर। तो अब इसमें परमिसिबल वैल्यू कैसे निकालें? फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने 6 ले लिया है, SUT हमारी 200 है, तो परमिसिबल वैल्यू कितनी हो गई? 200 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 डिवाइडेड बाई 6। सॉल्व करिए कितना आ रहा है? 16.67 है ना। ये जरा ध्यान रखिएगा कि हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी फ्लैंज के लिए ज्यादा लेना है, बिकॉज दे आर मेड ऑफ ब्रिटल मटेरियल। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसलिए यहाँ पे ज्यादा लिया गया है। तो इट इज 16.67 मेगापास्कल, ये फ्लैंज के लिए है। तो देखो कपलिंग के 4 कंपोनेंट हैं, चारों के लिए हमने मटेरियल डिसाइड कर लिया। बोल्ट और की का बिल्कुल सेम है।
शाफ्ट का मटेरियल अलग है 40 C8, की और बोल्ट का 30 C8, फ्लैंज का मटेरियल है FG 200। ठीक है, मटेरियल हमारे पास है। तो अब वापस आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेलेक्ट सुटेबल मटेरियल। हमने मटेरियल डिसाइड कर लिए, है ना, फॉर वेरियस पार्ट्स ऑफ द कपलिंग। डिजाइन दी कपलिंग, है ना, कपलिंग डिजाइन करनी है मतलब सब सारे कंपोनेंट डिजाइन करने हैं, शाफ्ट भी करना है, बोल्ट भी करना है, की भी करनी है, फ्लैंज भी करना है, ऑल द कंपोनेंट्स वी हैव टू डिजाइन एंड स्पेसिफाई द डायमेंशंस ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, तो डिजाइन करना है, तो डिजाइन में सबसे पहले शाफ्ट की बात कर लेते हैं। तो हमने टॉर्क तो निकाल लिया, टॉर्क के बाद हमारे पास फॉर्मूला है टॉ इक्वल टू 16 mt/πd³। अब शाफ्ट के लिए परमिसिबल शियर स्ट्रेस हमारा कितना आया है? देखो, शाफ्ट के लिए हमारा परमिसिबल शियर स्ट्रेस आया है 76, है ना। तो टॉ की जगह तो हम रख देंगे 76, 16 और mt हमारा कितना आया है 2984155। तो इनटू 2984155 डिवाइडेड बाय πd³। सो ओनली अननोन इज d, फाइंड द d। सॉल्व करिए, d कितना आ रहा है? 58.47 58.47। हाँ, इसको राउंड ऑफ करके हम ले लेते हैं 60 mm। ठीक है, तो शाफ्ट का डायमीटर हमारा हो गया 60 mm, करेक्ट। तो हमने एक कंपोनेंट डिजाइन कर लिया, है ना। तो अब मैं जरा से इसे क्लियर कर देता हूं। तो हमारा कपलिंग में सबसे पहले शाफ्ट होता है, तो शाफ्ट डिजाइन इज ओवर, d इक्वल टू 60 mm। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट होता है फ्लैंज डायमेंशन। तो फ्लैंज डायमेंशन जो होती हैं वो सब इंपेरिकल होती हैं। क्या होती हैं? इंपेरिकल रिलेशन होते हैं। तो वो इंपेरिकल रिलेशन मैं यहाँ लिख देता हूं। ठीक है, एक तो होता है हब का डायमीटर, एक होता है हब की लेंथ, एक होता है पिच सर्किल डायमीटर ऑफ द बोल्ट, एक होता है आउटर डायमीटर ऑफ द फ्लैंज, एक होता है फ्लैंज की थिकनेस, एक होता है रिम की थिकनेस। ये बहुत सारे इंपेरिकल फॉर्मूले हैं, ये मैंने आपको क्लास में बताए भी हैं, इससे पहले वाली प्रीवियस क्लासेस। ठीक है, तो इंपेरिकल रिलेशन है DH की वैल्यू 2D के बराबर होती है। तो 2D, 2 इंटू डी हमारा स्टेप 1 में कितना आया है 60। सो इट इज 2 इंटू 60 कितना हो गया 120 mm। ठीक है, जरा आंसर चेक कर लीजिए यहाँ पे। आंसर्स आर गिवन, d इक्वल टू 60, ये तो शाफ्ट का डायमीटर है, DH यानी कि ये हब का डायमीटर है, हब की वैल्यू कितनी हो गई 120, 2D से, ये 2D से 120 आ गई। LH की वैल्यू 1.5D होती है, तो 1.5 इंटू 60 कितना हुआ 90, तो ये 90 आ गया। कैपिटल D जो है वो PCD है, पिच सर्किल डायमीटर, इसकी वैल्यू 3D होती है, तो 3 इंटू 60 से ये कितना आ गया 180 आ गया, दिस इज 180। तो उसके बाद फ्लैंज की थिकनेस स्मॉल t, इंपेरिकल रिलेशन होता है 0.5D, तो 0.5 इंटू 60 से ये कितना आ गया 30, तो ये 30 हो गया। T1 जो होता है वो रिम की थिकनेस है, और रिम की थिकनेस के लिए फॉर्मूला है 0.25D। 60 15 mm। ठीक है, 15 तो हमने ये सारा काम कर लिया। जैसे ही शाफ्ट का डायमीटर कैलकुलेट हुआ, हब का डायमीटर मिल गया, लेंथ ऑफ द हब मिल गया, पिच सर्किल डायमीटर ऑफ द बोल्ट मिल गया, फ्लैंज की थिकनेस मिल गई, रिम की थिकनेस मिल गई। अब ये dr जो है वो क्या है डायमीटर ऑफ द रिसेस। तो रिसेस ऑफ के लिए इंपेरिकल रिलेशन है 1.5D, तो ये हो गया 1.5 इंटू 60, सो इट इज 90 mm। dr भी मिल गया। अब DO के लिए रिलेशन है, DO होता है आउटर डायमीटर ऑफ द फ्लैंज, तो DO के लिए रिलेशन होता है 4D प्लस 2T1, है ना, 4D प्लस 2T1। तो 4D 4 इंटू 60 प्लस 2 इंटू T1 हमने कितना कैलकुलेट किया है 15 mm। ये देखिए T1 हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, रिम का डायमीटर, सो इट इज 2 इंटू 15। इसको सॉल्व करिए, कितना हुआ 60 into 4 240, 15 into 2 30, so 240 plus 30 it is 270 mm। तो देखिए DO हमारा 270 आ गया। अब आता है D1 तो बोल्ट का डायमीटर है, तो ये तो हम थर्ड स्टेप में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और की डायमेंशन 18 11 90 है, ये की डायमेंशन ये हम फोर्थ स्टेप में कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए अभी तक हमने 2 स्टेप पूरे किए हैं। पहला स्टेप हमने किया है शाफ्ट का डायमीटर जो कि 60 मिलीमीटर आया,
उसके बाद हमने एम्पेरिकल रिलेशन से फ्लेंज की डायमेंशन निकाल ली। फ्लेंज की डायमेंशन में बहुत सारी डायमेंशन आती हैं, जैसे हब की डायमेंशन क्या है, हब की लेंथ क्या है, पिच सर्किल डायमीटर क्या है, हब का आउटर डायमीटर क्या है, रिसेस का डायमीटर क्या है, फ्लेंज की थिकनेस क्या है, रिम की थिकनेस क्या है, ये सारी डायमेंशन फ्लेंज डायमेंशन के अंदर में कैलकुलेट होती है। तो वो इंपेरिकल रिलेशन से कैलकुलेट होती है। ठीक है, अब आपको याद हो तो डिजाइन में 2 चेक इन्वॉल्व थे। क्या थे? 2 चेक इन्वॉल्व थे फ्लेंज वाले। अभी स्टेप 2 पर ही हैं हम। नाउ वी आर ऑन स्टेप 2। तो स्टेप 2 में क्या इंपेरिकल रिलेशन हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमको चेक 1, पहला चेक क्या होता है? शियर स्ट्रेस इन दी हब। शियर स्ट्रेस इन दी हब। तो हब के लिए क्या फॉर्मूला है? टॉ इक्वल टू mt r ओवर j। ठीक है, mt तो हमें पता है, mt हमारा कितना आया था? 2984155। तो मैं यहां लिख सकता हूं 2984155, है ना, पॉइंट में आया था 2984155.18। ये तो mt हो गया। अब r जो होता है वो dh/2 होता है। अब देखो dh हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 120 mm, तो 120 का हाफ कर दीजिए, कितना हो गया? 60 mm। तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ r की जगह 60 लिखिए, डिवाइडेड बाय j होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है dh4 माइनस d4 डिवाइडेड बाय 32। ठीक है, dh4 माइनस d टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 32। अब इसमें देखें पाई dh हमारा कितना है? 120 mm, तो यहाँ 120 लिखिए, 120 पावर 4 d मतलब साफ डायमीटर। साफ डायमीटर कितना है? 60 mm, तो इसको लिखिए 60 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 32। सॉल्व कर दीजिए, पोलर मोमेंट में कितना आ रहा है, प्लीज सॉल्व। जे की वैल्यू क्या आ रही है, सॉल्व करके बताइए। इट इज कमिंग 19085175.37। सही है ये? और इसकी यूनिट क्या होगी जे की? मिलीमीटर पावर 4। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या होगा? मिलीमीटर पावर 4। तो इस जे अब हमारे पास अवेलेबल है, तो जे को हम यहाँ नोट करेंगे 19085175.37। सॉल्व कर दीजिए, कितना आ रहा है? हाँ, सॉल्व करिए। टॉ की वैल्यू क्या आ रही है? 9.38 आ रही है। वेरी गुड, 9.38 आ रही है हमारी शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन द हब ऑफ द फ्लेंज। ठीक है, फ्लेंज के हब में इतना शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब उस फ्लेंज के मटेरियल का परमिसिबल वैल्यू कितना है? फ्लेंज के मटेरियल का परमिसिबल वैल्यू, ये देखिए, फ्लेंज के मटेरियल का परमिसिबल वैल्यू 0.3 में देखिए 16.67 है। हमारा 9.38 आया है और परमिसिबल 16.6 है। इसका मतलब हमारा शियर स्ट्रेस परमिसिबल से कम है, परमिसिबल से कम है। परमिसिबल से कम होने का मतलब हब की डिजाइन सेफ है ना। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? द डिजाइन ऑफ द हब इज सेफ। तो ये पहला चेक हमारा सक्सेसफुली क्लियर हो गया। पहला चेक हमने हब के स्ट्रेस को चेक कर लिया कि वो परमिसिबल वैल्यू से कम है। करेक्ट। अब चेक नंबर 2। चेक नंबर 2 क्या है? जंक्शन पे चेक करते हैं। तो मैं जरा से फिर से क्लियर कर लेता हूं। अभी स्टेप 2 पे ही चल रहे हैं हम, चेक लगा रहे हैं। पहला चेक लगा लिया, अब चेक नंबर 2। चेक नंबर 2 में हम फिर से शियर स्ट्रेस चेक करेंगे एट द जंक्शन ऑफ द हब, जंक्शन ऑफ हब। तो इसके लिए हमने क्या फॉर्मूला निकाला था? mt इक्वल टू हाफ dh स्क्वायर पाई dh स्क्वायर टी टाउ। mt हमारे पास अवेलेबल है, mt कितना है? 2984155, 2984155.18। ये तो हमने रख दिया mt की जगह। हाफ इंटू पाई, पाई इज 3.14, dh स्क्वायर, dh हमारा कितना कैलकुलेट हुआ है? 120 इंपेरिकल रिलेशन से। सो इट इज 120 स्क्वायर इंटू टी मतलब फ्लेंज की थिकनेस। फ्लेंज की थिकनेस हमारी कितनी कैलकुलेट हुई है? 30 mm। सो इंटू 30 इंटू टाउ is the shear stress produced at the junction of the hub. So only the unknown is tau. So determine the tau. So how much tau is coming? Solve it.
It is coming 4.4 megapascal. 4.4. तो देखिए 4.4 प्रोड्यूस हो रहा है, 4.4 तो प्रोड्यूस हो रहा है, परमिसिबल वैल्यू 16.67 है. So because the produced stress is less than the permissible stress, so the design of the hub at the junction is safe. है ना, design of hub at junction is safe. तो हमने दोनों चेक पास कर लिए. तो अब हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया. अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ. तो मैं फिर इसे क्लियर करता हूं. नाउ स्टेप नंबर 3. अब स्टेप 3 में हमें क्या डिजाइन करना है? हमें डिजाइन करना है बोल्ट. तो सबसे पहले तो बोल्ट की संख्या पता करिए कि वो संख्या कितनी होगी. बोल्ट की नंबर्स के लिए 3 ऑप्शन है आपके पास. बोल्ट की संख्या 3 होती है जब शाफ्ट का डायमीटर 40 से कम हो. बोल्ट की संख्या 4 होती है यदि शाफ्ट का डायमीटर 40 से अधिक हो और 100 से कम हो. अन्यथा बोल्ट की संख्या आप 6 ले सकते हैं 100 से ज्यादा होने पर. तो आप आया है 60 mm. स्टेप 1. व्हाई योर नंबर ऑफ द बोल्ट्स इज 4. है ना, तो आपके नंबर ऑफ द बोल्ट्स डिजाइन हो गए n इक्वल टू 4. दिस इज फाइन. ठीक है. अब जैसे ही बोल्ट डिजाइन हो गए तो अब बोल्ट का डायमीटर कैलकुलेट कर लीजिए. तो बोल्ट के डायमीटर के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था? d1 स्क्वायर इक्वल टू 8mt डिवाइडेड बाई पाई dn इंटू टाउ. ये हमारे पास फॉर्मूला था d1 स्क्वायर के लिए, बोल्ट के डायमीटर के लिए. तो इसमें आप देखो 8 इंटू एमटी हमें ऑलरेडी पता है 2984155 2984155.18 है ना, 0.18. दिस इज द एमटी डिवाइडेड बाय पाई डी. दिस कैपिटल डी इज द पिच सर्किल डायमीटर. सो व्हाट इज द पिच सर्किल डायमीटर? इट इज 180. So pi to 180 into n. n is the number of the bolt and number of the bolt is 4. अभी हमने डिसाइड किया है. and into tau. Tau is the permissible shear stress. तो बोल्ट के मटेरियल में परमिसिबल shear stress हमारा कितना आया है चेक करिए. पॉइंट नंबर 2 देखिए. बोल्ट के केस में हमारा परमिसिबल shear stress आया है कितना? 80 मेगापास्कल. 80. देखो तो ये बहुत ध्यान देना जरूरी है कि वेरिएबल का नाम तो हर जगह टाउ है ना. हम शाफ्ट के केस में भी टाउ कह रहे हैं, की के केस में भी टाउ कह रहे हैं, बोल्ट के केस में भी टाउ कह रहे हैं, फ्लैंज के केस में भी टाउ कह रहे हैं. देयर आर सो मेनी शियर स्ट्रेस. डोंट कंफ्यूज. इफ यू आर डिजाइनिंग द बोल्ट देन टेक द टाउ फॉर द बोल्ट. इफ यू आर डिजाइनिंग द की देन टेक द शियर स्ट्रेस फॉर द की. है ना, उसी हिसाब से रेफरेंस लीजिए. तो अब हमारी टाउ की जो लिमिट है दैट इज 80 मेगापास्कल फॉर द बोल्ट. तो अब यहां पे हम टाउ की जगह 80 लिख सकते हैं. और अब ओनली द अननोन इज d1. सो फाइंड d1. सो हाउ मच d1 इज कमिंग? बोल्ट का डायमीटर बताइए. 11.486 mm. 11.48 है ना. तो d1 इज कमिंग 11.48. इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं. सो इट इज 12 mm. सो इट इज ए M12 बोल्ट. है ना, बोल्ट का साइज क्या होगा मीट्रिक थ्रेड्स में? M12 बोल्ट. सो बोल्ट डायमीटर हमारा डिटरमिन हो गया. स्टेप 3 चल रहा है. अब जब बोल्ट का डायमीटर कैलकुलेट हो जाए तो बोल्ट पर तो कंप्रेसिव स्ट्रेस भी आते हैं. तो कंप्रेसिव स्ट्रेस को आपको चेक करना है कि क्या वो वैल्यू परमिसिबल वैल्यू से कम है. यदि बोल्ट के अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेस परमिसिबल वैल्यू से कम है इसका मतलब बोल्ट की डिजाइन सेफ है. ठीक है. तो शियर स्ट्रेस से तो आपको डायमीटर निकालना है और एक बार जब डायमीटर निकल जाए तो कंप्रेसिव स्ट्रेस इन दी बोल्ट आपको चेक करना है. ठीक है. तो अब चेक वाले पार्ट पे आते हैं. चेक. तो क्या चीज चेक करना है? कंप्रेसिव स्ट्रेस इन द बोल्ट, सिग्मा सी इन द बोल्ट. तो सिग्मा सी के लिए क्या फॉर्मूला है बताओ? है ना, अभी हमने डिजाइन के वक्त बताया है सिग्मा सी का फॉर्मूला. और हम मान लो आपको याद नहीं रहता है तो डिराइव कर लो. वैसे तो डाटा बुक में दिया हुआ है सिग्मा सी का फॉर्मूला. है ना. तो क्या होता है सिग्मा सी? सिग्मा सी इज जस्ट फोर्स अपॉन एरिया. भाई पी बाई ए ही होता है कुल मिला के. है ना. फोर्स को आप क्या लिख सकते हो? ट्वाइस एम.
Am I audible? Yes, sir. डिस्कनेक्ट हो गया था जरा, तो जरा मुझे ये बताएंगे मैं कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा था, है ना? मैं फिर से शेयर स्क्रीन कर ले रहा हूँ पहले। मेरे ख्याल से हम बोल्ट की डिजाइन पे वर्क कर रहे थे, तो बोल्ट की डिजाइन में, यस, तो बोल्ट की डिजाइन में मेरे ख्याल से हमने शियर स्ट्रेस कैलकुलेट कर लिया था बोल्ट का, बोल्ट का डायमीटर कैलकुलेट कर लिया था, है ना? कितना आया था बोल्ट का डायमीटर, जरा बताइए। 11.48. हाँ, तो हमने उसे M12 कर लिया था, है ना? बोल्ट का डायमीटर M12 आ गया था। उसके बाद चेक करना है हमें कंप्रेसिव स्ट्रेस इन दी बोल्ट। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को हम लिख सकते हैं ट्वाइस mt बाई डी। डी इज द पिच सर्किल डायमीटर। एरिया कंप्रेसिव एरिया है। कंप्रेसिव एरिया बोल्ट का कितना होता है? D1T इंटू n। D1T होता है एक बोल्ट का, and there are n number of bolts, that's why the total compressive area is D1TN, or I can say ND1T। तो मैं लिख सकता हूं DN D1T। so this is the formula for the compressive stress। बना सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया, है ना? या तो याद कर लीजिए, ना तो बना लीजिए, या डाटा बुक से देख लीजिए। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो बस अब यहाँ पे mt आपको पता है, 2 इंटू mt। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ mt? 298 4155.18 divided by d is the pitch circle diameter। so what is the pitch circle diameter? Pitch circle diameter is 180, है ना? 180। so it is 180 into number of the bolt is 4। d1 आपने कैलकुलेट किया है 12 mm। t is the thickness of the flange। thickness of the flange is 30 mm, है ना? just solve it। what is the value coming over here? so sigma c की वैल्यू क्या आ रही है बताइए, सॉल्व कर दीजिए। it is coming 23.102. 0.02। वेरी सही है, मेगा पास्कल 0203। तो अब देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेस 23 मेगा पास्कल तो प्रोड्यूस हो रहा है, और हमारी परमिसिबल वैल्यू कितनी है कंप्रेशन के लिए, है ना? बोल्ट का मटेरियल कंप्रेसिव वैल्यू सिग्मा सी कितनी है हमारी? 240. 400 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5। कितना आया था ये हमारा सॉल्व होके? 240. 240। तो बहुत, हम तो बहुत सेफ हैं। 240 तो परमिसिबल वैल्यू है, और हमारी वैल्यू 23 मेगा पास्कल है। वी आर मच सेफर, काफी सेफ हैं हम। तो द डिजाइन ऑफ द बोल्ट इज सेफ। सो स्टेप 3 इज नाउ कंप्लीट, है ना? स्टेप 3 में हमने डायमीटर निकाला, उसके बाद हमने कंप्रेशन स्ट्रेस को चेक कर लिया कि वो परमिसिबल वैल्यू से कम है। अब लास्ट स्टेप पे आ रहे हैं। लास्ट स्टेप क्या है? की डिजाइन। ठीक है, तो अब की डिजाइन देखिए कैसे करेंगे। की डिजाइन बहुत सिंपल है। अब फोर्थ स्टेप है ना, स्टेप 4, जिसमें हम की को डिजाइन करेंगे। अब की का डिजिग्नेशन क्या होता है? BHL, यही तो होता है की का डिजिग्नेशन। B is the width of the key, H is the height of the key, and L is the length of the key। तो लेंथ के लिए तो बड़ा सिंपल सा है कि लेंथ ऑफ द की इज कैप्ट इक्वल टू लेंथ ऑफ द हब, क्योंकि की को हब और शाफ्ट के बीच में ही तो इंसर्ट होना है। तो की जो लेंथ है वो हब की लेंथ के बराबर होनी चाहिए। तो अब देखिए हब की लेंथ हमने कितनी कैलकुलेट की है? 90 mm LH। ये देखिए नीचे बॉटम में LH इज 90, तो L इक्वल टू 90 mm हो गया, यानी कि हमको की लेंथ पता लग गई। वन पार्ट इज ओवर। अब आता है B और H। ठीक है, अब B और H के लिए बड़ा आसान है। डाटा बुक में जाना है। डाटा बुक में B और H के लिए शाफ्ट के डायमीटर के अकॉर्डिंग टेबल बनी हुई है ना? टेबल इज 9.3, टेबल नंबर 9.3। तो 9.3 टेबल में शाफ्ट का डायमीटर हमारा कितना है? हमारा डायमीटर आया है 60 mm। तो 60 वाली रो में हम ये देख लेंगे कि B क्रॉस H कितना दिया हुआ है इस टेबल में। तो 60 mm वाली रो में B क्रॉस H, है ना? आप डाटा बुक से देख सकते हैं, मैंने नोट किया हुआ है वहां से। सो इट इज कमिंग 18 क्रॉस 9, 18 क्रॉस 11। तो इसका मतलब विड्थ हो गई 18 mm, हाइट हो गई 11 mm। तो हमारा की का डिजाइन क्या हो गया? फाइनल डायमेंशंस क्या हो गए की के? 18 by 11 into 90। दिस इज द फाइनल की डायमेंशन।
अब ये जो की है ये सेफ भी होनी चाहिए। तो सेफ किसमें होनी चाहिए? की पर कौन कौन से स्ट्रेस आते हैं? एक तो टाउ आता है और एक सिग्मा सी आता है। तो ये दोनों में ही सेफ होनी चाहिए। तो आपको डायमेंशन मिल चुकी है, जस्ट चेक कि ये सेफ है या नहीं। तो टाउ के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? ट्वाइस mt बाई dBl। ये हमने प्रूफ किया था की डिजाइन के समय। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई mt। mt हमारा कितना है? 2984155.18 डिवाइडेड बाई d मतलब शाफ्ट डायमीटर, b मतलब विड्थ ऑफ द की। विड्थ ऑफ द की इज 18, l इज 90 mm, है ना। b इज 18, l इज 90। सॉल्व कर दीजिए, कितना आ रहा है? 61.4 61.4 मेगा पास्कल। तो अब देखिए हमारी की में 61.4 तो प्रोड्यूस हो रहा है, और परमिसिबल वैल्यू कितनी है? परमिसिबल वैल्यू टाउ के लिए 400 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 2.5। सॉल्व करिए, कितना आता है? 80 80। तो 80 तक अलाउड है और हमारा 61.4 आया है। इसका मतलब हमारी की सेफ है अंडर शियर स्ट्रेस। सो आवर की इज सेफ अंडर शियरिंग फिनोमेना। अब उसे कंप्रेसिव फिनोमेना में भी चेक कर लेते हैं। तो कंप्रेशन के लिए क्या फॉर्मूला है? 4mt डिवाइडेड बाई DHL। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 4mt बाई DHL, 4 इंटू mt की वैल्यू 2984155.18 डिवाइडेड बाई DHL। डी हमारा कितना है? 60। h हमारा की का हाइट कितना है? 11 इंटू लेंथ ऑफ द की कितना है? 90। सॉल्व कर दीजिए, कितना? 200.95 मेगा पास्कल। तो ये तो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ। और अलाउड हमें कितना है? अलाउड हमें 240 है ना, 240। तो अलाउड है 240, हमारा प्रोड्यूस हुआ 200। इसका मतलब हम सेफ है, क्योंकि 200 240 से कम है ना। ये 61.4 80 से कम है, तो हम शियर में भी सेफ हैं, हम कंप्रेशन में भी सेफ हैं। तो आवर की इज सेफ अंडर बोथ शियर एंड कंप्रेशन। सो द डिजाइन ऑफ द की इज सेफ। ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स द दिस न्यूमेरिकल। तो मैं जरा समराइज कर दूं कि हमने क्या किया। सबसे पहले हमने शाफ्ट का डायमीटर निकाला। ठीक है। शाफ्ट का हमने मटेरियल डिसाइड कर लिया, सबके शाफ्ट का मटेरियल डिसाइड कर लिया, बोल्ट और की का मटेरियल डिसाइड कर लिया, फ्लेंज का मटेरियल डिसाइड कर लिया। आफ्टर सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल वी हैव कैलकुलेटेड द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। शाफ्ट का डायमीटर हमारा आ गया 60 mm। जैसे ही शाफ्ट का डायमीटर मिला, सेकंड स्टेप पे हम पहुंच गए। सेकंड स्टेप में हमने फ्लेंज के डायमेंशन निकाल लिए, DH निकाल लिया, LH निकाल लिया, कैपिटल D निकाल लिया, स्मॉल t निकाल लिया, T1 निकाल लिया, DR मतलब रिसेस डायमीटर निकाल लिया, DO आउटर डायमीटर ऑफ द फ्लेंज। ये इतना सारा काम, यहां से देखो मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, यहां तक की। तो ये कितने पैरामीटर हो गए? काउंट करें तो DH से 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 पैरामीटर आपने इंपेरिकल रिलेशन से निकाल दी वैल्यूज। ठीक है। तो फ्लेंज की डिजाइन हो गई, लेकिन फ्लेंज में अभी चेकिंग नहीं हुई। फ्लेंज की डायमेंशन तो मिल गई, लेकिन फ्लेंज के अंदर जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो परमिसिबल वैल्यू से कम भी तो होने चाहिए फॉर द सेफ डिजाइन। तो हम क्या कर रहे हैं? हम शियर स्ट्रेस इन दी हब चेक कर रहे हैं। तो हब के लिए क्या फॉर्मूला है? टॉ इक्वल टू mtr बाई जे। जे क्या है? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। और जे के लिए फॉर्मूला है पाई dh4 माइनस d4 बाई। तो उन फॉर्मूलों की हेल्प से हम टाउ कैलकुलेट कर रहे हैं, और यदि वो टाउ परमिसिबल टाउ से कम आ रहा है तो हमारी डिजाइन ऑफ दी हब सेफ है। तो हम हब के फ्लेंज पे दो तरह के चेक लगा रहे हैं, एक तो हब में स्ट्रेस, और दूसरा जंक्शन ऑफ दी हब। जंक्शन वाला पार्ट भी क्रिटिकल होता है, तो वहां पर भी हम शियर स्ट्रेस चेक कर रहे हैं। दो चेक लगा रहे हैं स्टेप 2 में। इसके बाद हम थर्ड स्टेप पे आ रहे हैं, बोल्ट की डिजाइन। बोल्ट का मटेरियल हम ऑलरेडी फाइनल कर चुके हैं। तो पहले हम बोल्ट का डायमीटर निकालते हैं शियर स्ट्रेस की हेल्प से, फिर हम कंप्रेसिव स्ट्रेस को चेक करते हैं, है ना। यदि कंप्रेसिव स्ट्रेस परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस से कम है, इसका मतलब हमारे बोल्ट की डिजाइन सही है। उसके बाद लास्ट स्टेप होता है डिजाइन ऑफ द की। डिजाइन ऑफ द की इज वेरी सिंपल। द की क्रॉस सेक्शन is just you can found with the help of data book. There is a table. According to the shaft diameter, you can calculate the width and height of the key.
है ना. So that width and height we have got 18 by 11. 18 mm is the width, h is 11, and L is the length of the key, which is kept equal to the length of the hub. So L equal to LH is 90. So the dimensions of the key can be found. After finding the dimension of the key, you have to check the key is safe or not, है ना. तो की के ऊपर फिर से दो स्ट्रेस आ रहे हैं, एक शियर और एक कंप्रेसिव. शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला ट्वाइस एमटी बाई डीबीएल, है ना. उसको चेक कर लीजिए कि वो परमिसिबल वैल्यू से कम है या नहीं. तो हमारे केस में बिल्कुल कम आया है. उसके बाद सिग्मा सी चेक करिए 4mt बाई डीएचएल से. कंप्रेसिव स्ट्रेस वो भी हमारे केस में कम आया है. इसका मतलब आवर की इज सेफ अंडर बोथ दी शियर एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस. ठीक है. तो कपलिंग के चार कंपोनेंट होते हैं, शाफ्ट, फ्लैंज, बोल्ट, की. सो दिस कंप्लीट्स द डिजाइन ऑफ द रिजिड फ्लैंज कपलिंग, फुल डिजाइन, जिसमें हमने मटेरियल सिलेक्शन भी खुद अपना ही किया है. यदि आप अपने मटेरियल कुछ और चूज करेंगे तो आपके आंसर्स अलग हो सकते हैं, है ना. तो एग्जाम में आप बिल्कुल भी इस बात को मत रखिए, आप अपना मटेरियल डिसाइड करिए. अभी मैंने 40 C8 किया है, हो सकता है आपने 35 C8 कर लिया हो. तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रोसेस पूरी कर दीजिए. आपकी वैल्यू यदि परमिसिबल वैल्यूज के अंदर हैं, इसका मतलब आपकी डिजाइन सेफ है. ठीक है. और मान लीजिए आपकी वैल्यूज परमिसिबल वैल्यू के अंदर ना भी आ रही हैं, then in that case you can repeat the procedure. Either you can change the material or you can change some empirical dimension, है ना, by trial and error method. And ultimate goal is you have to reach the safe design of all components of the coupling. ठीक है. So this completes. यदि कोई डाउट है तो प्लीज बोलिएगा. नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्लेक्सिबल कपलिंग को डिजाइन करेंगे और उसका मैटलैब प्रोग्राम बनाएंगे. तो इस तरह से हमारा ये कपलिंग वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. सर हाँ बोलिए. यस सर वो जीएलए का फिर कुछ खुलने का फिर सीन है क्या फिर ऐसा कुछ? अच्छा वेदांत बताएं कि रिजिड फ्लैंज कपलिंग की डिजाइन में कोई डाउट है तो हम थोड़ा वेट करते हैं, अन्यथा आई विल क्लोज द क्लास. क्लियर है सब? चलिए ठीक है फिर. थैंक यू.